So, what is this हम्म। Japa period and what mother actually goes through when this Japa period happens, and what is the role of father? तो ये बोल देना कि भाई बच्चा हो गया अब आप बस उसकी देखभाल करो, ये बहुत ही घटिया मेंटालिटी है, आई वुड से। व्हेन अ वुमन गिव्स बर्थ, शी एवरीबडी सेज राइट कि उसका एक नया जन्म होता है, क्योंकि इट इज सो क्रूशियल, एवरीथिंग इज सो क्रूशियल। लाइक if one thing goes wrong, that can be very fatal, like that can be very dangerous for her own health। बच्चे का तो छोड़ो, माँ की भी हेल्थ के ऊपर बहुत कभी कभी इम्पैक्ट पड़ता है। Hi, and thank you so much, Nidhi, for taking out time. And we are so honored to have you, a mom to a toddler and a fashion designer full time. I know how difficult it is to take out time for even for a little thing that you have to do for yourself. But thank you so much for being on the show. Thank you so much for inviting me. And it is an honor, of course, to be here and to, speak publicly about myself, my life, and so many other things. So I'm Amazing. glad to be here. Amazing. So, Nidhi, tell me something. Since you have been married in a joint family, and 69% of females, mothers, are living in nuclear family and they prefer to live in a nuclear setup. So, what is your insight around it? How do you think like nuclear family is better or joint family is better when you become a mother? Uh, that is a very, biased sort of a question because everybody has a different opinion about it. So I will tell you, I have a moms group wherein there are a lot of moms from all over the country, like India. I mean, they are from Bangalore, Hyderabad, Bombay, Delhi, NCR, so many places. And we always speak about a lot of topics. So whenever somebody's like a little overwhelmed, we talk about it on the group and we start discussing. So there was this discussion one day where everybody was like, I don't want to live with my in-laws because I'm facing certain issues with them, and the husband is doing this and that. And the other person, she was like, oh my god, you're so lucky, like you have your in-laws with you. I'm staying just with my husband, and managing a toddler is so difficult. I have office, I have work, I have work from home, and things like that. And then the debate started. So there were all these people who were living with their in-laws. They were saying that, no, you have a better life because you're living alone with your husband. And the people who were living nuclear, they were like, no, you have a better life because we have to manage everything on our own. So I would say it's something like that shadi wala laddu. If you eat it, you regret it. If you don't eat, you regret it. Same. So if you live with the parents, you always like, no, I just want to live separate. I just want to live nuclear with just my husband. And when you live with your husband and you face certain challenges, then you're always like, oh, I wish the family was here. So I would say that it is 50-50, and it is definitely on a person's situation, on a family. Like I have seen a lot of families that are very toxic, and you just cannot stand the people, the parents, and there's always conflict in the house, and it really impacts your mental health. And on top of that, if you're raising a kid, and it is the beginning of a kid's life, and if they're going to see such environment each and every day, people fighting, shouting, and doing certain things which are not right as adults, then it will definitely impact the child. So in that situation, I would say it's better that you live separately, you better live away from them, because sometimes even that distance is very important. If the situation is like that the family cannot be, the parents and the children, they don't have that mutual understanding and there is always conflict, it's better to just live away rather than facing the situation every day. Right. Nidhi, I think rightly mentioned by you, I think हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साथ रह सकें। बट कई बार क्या होता है कि बात नहीं बनती। बात नहीं बनती, कितना भी आप कोशिश कर लें, जो कमी है वो रह ही जाती है। तो राइटली सेड दैट इम्पैक्ट्स मदर्स मेंटल हेल्थ एंड दैट इम्पैक्ट्स child's mental health, क्योंकि if mom is not calm and happy, how can you expect she can keep her child calmer and happy and husband calmer and happy, you know? So Definitely. take your decision mutually as a team with your husband, discuss that। हम क्या करते हैं ना, बात नहीं करते हैं, हम Hmm. सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये हो रहा है, तुम्हारी मम्मा ने मुझे ये बोल दिया, मैं अपना पेरेंटिंग स्टाइल ये है। हम बात नहीं करते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है और हमारे बच्चे में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। और निधि,
सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट आई रिसीव सो मेनी क्वेरीज। ऐसा भी होता है कि अ, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, बट क्या फील हो रहा है ड्यूरिंग द प्रॉब्लम, कहाँ कहाँ आपको हम्म हिट हो रहा है, वो हम बात करना ही भूल जाते हैं शायद। एंड हेंस आई हम्म थिंक जो हस्बैंड्स होते हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं कि क्यों सेपरेट होना है, क्यों, क्योंकि कई बार ही इज द ओनली सन इन द फैमिली, हम्म and sometimes the only bread earner also in the family. So that हम्म is very, very complex actually. But in the modern parenting world in India, more than 50% of mothers are preferring to, sit, raise their children in a nuclear setup. So you हम्म tell me, you live in a joint family or a nuclear family? So I just live with my in-laws. Like there's just four of us, like me, my husband, the in-laws, father-in-law, mother-in-law, and my daughter. So So it's so a joint, five of us. it's four Yeah, and a half. four and a half. It's a joint family setup. So ऐसा होता नहीं थी that there is a different parenting style, elderly people want a different parenting style in grandchildren, and mothers, because they have from the modern era and they have a different vision and they want to raise children differently. ऐसा होता है, conflicts आते हैं, अगर आते हैं तो कैसे handle करते हो? Definitely, there will be conflicts, and I think it is very common. Even not even just my in-laws, even my own parents. So they have been brought up in a very different sort of a mentality. बहुत अलग माहौल होता था, एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता था. उनके पेरेंट्स जो आज के हम पेरेंट्स कर सकते हैं और करते हैं, वो नहीं हो पाता था, राइट? एक्सपोजर ही नहीं है कि था जब वैसा। हम एक्सपोजर ही नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, पेरेंटिंग क्लासेस नहीं थी, इतनी सारी नॉलेज नहीं थी पेरेंट्स के पास. प्लस पेरेंट्स वर मोर बिजी इन रेजिंग द किड्स अलोंग विद टेकिंग केयर ऑफ द फैमिलीज. यूजुअली या तो जॉइंट सेटअप्स होते थे. और लाइक एग्जांपल फॉर माय फैमिली एंड माय पेरेंट्स, माय डैड वाज इन एयरफोर्स, ही वाज इन मिलिट्री. So डिग्री। we always stayed nuclear. So we were not able to live with the grandparents ever. It was just the holidays when we used to go to our grandparents. Otherwise, we used to live like separately. And my mom, she was managing us. She was managing the home. Plus, she was also a beautician. So she was managing that. She was also working. And they were so focused on that that, of course, they wanted to give everything to us. And they did. I had a wonderful childhood. And I don't remember each anything that was bad about it. Like I completely own it, and I would say that they did a great job. My parents, they raised me really well. वेरी नाइस। What I am today, and my brother, he's very successful, and I'm trying to be, but it is because of them. And I honestly, they did everything possible for us. We were not like a very well-to-do. I would say, we were a middle-class family. We had all the resources, but my parents, they tried giving us the best. Um, and that is what we do, right? But even देयर मेंटालिटी और उनकी भी सोच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप रह जाता है. बट आई वुड टेल यू कि उनको समझाना बहुत ईजी है, क्योंकि दे हैव ऑलवेज सीन अ लॉट ऑफ कल्चर्स. क्योंकि बाहर रहना, मिलिट्री में रहना, यू स्टे विद अ लॉट ऑफ पीपल, अदर सोसाइटीज में आप जाते हो, आप डिफरेंट स्टेट्स के लोगों को देखते हो, आप उनकी एडजस्ट मेंटालिटी करते के हो। साथ रहते हो, आप एडजस्ट करते हो, आपकी नेचर एडजस्टिंग हो जाती है. सो अगर कोई भी ऐसी चीज होती है, फॉर माई डॉटर, व्हेन माई मदर इज सेइंग कि डोंट डू दिस, I would give you an example. So when my daughter was born, I was with my at my parents' house, and they were taking care of her. They were taking care of me in my that Japa period. And then my mother was like, "So whenever you're breastfeeding her, you should take a red cloth and you should wipe her lips. उससे क्या होगा कि उसके जो होठ है ना, वो काले नहीं होंगे, वो लाल रहेंगे, ठीक है?" And I asked her out of curiosity कि ये ऐसा क्यों, मतलब why do we do this? So she's like, my mom told me this, and your daddy told me this, and I did this to you guys, and that's why you have such red or pink lips, because बच्चों के होठ काले हो जाते हैं. I was so shocked. I was like, this is scientifically not true. Second, I told my mom that, Mom, I'm not doing this because जो भी लाल कपड़ा आप मुझे दोगे, you never know what आए। chemical treatment that is उस कपड़े में किया गया है, right? If it is a proper red cloth, there must be something, some dye or something. And I told her that if I'll rub it on her lips and she is continuously licking
or sucking or drinking milk, that chemical will go inside her body. And I was like, more than making her lips red, which is not going to happen, that is just a stupid thought. She will inhale, she will have that chemical, and that can create some other issue. And I was like, this is not true, mom. अगर बच्चे के होठ genetically, if they are black or they are brownish color, it will happen. If she has pink lips genetically, and which will be there, right? तो वो होगा. Plus when the kid starts breastfeeding, there are certain things scientifically, they're drinking and certain black elements they come, and then धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है. वो सब बच्चों के साथ होता है. बट हमारी सोच जो पुराने जमाने की विचार आ रहे हैं, तो when I explained it to her, she was like, yeah, you're 100% right. I mean, I never thought about it in this way. So I'm telling you, like, if you perspective. explain it to them in the right way, if you tell them that there is a logic behind this, this is not true. So they will understand. And in my parents' case, there were a lot of things जो उन्होंने मुझे बोली, जो उन्होंने सुनी थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा बेटा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा. जब मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे ये लॉजिक है, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, इसलिए सारी चीजें होती थी, तो वो समझ गए. बट कुछ लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी मेंटालिटी या कुछ लोगों को अपनी सोच बढ़ानी ही नहीं होती. उनके लिए जो वो सोचते हैं वो सही है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ मॉम्स फेस दैट इशू, क्योंकि पोस्टमार्टम बहुत टफ होता है यार. इट इज नॉट इजी. हम बस बोल देते हैं पोस्टमार्टम है, टफ है. ये जो सिचुएशन से गुजरता है, आई मीन, जो उसको जिसने फेस किया होता है उसे ही पता होता है. एंड वो सिर्फ एक मॉम ही बता सकती है, राइट? एक डैड को भी नहीं पता कि उनकी वाइफ ने क्या फेस किया है, क्योंकि वो बस देख रहे हैं. एंड Absolutely. जो अंदर इमोशनल हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी में, खतरनाक, उस ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी अदर पर्सन इज गिविंग यू एन एडवाइस कि भाई ऐसे मत करो, हमने तो ऐसे बच्चा पाला था. तो उसमें एक माँ और ज्यादा इरिटेट होती है. लेकिन वो लोग भी क्या करें, उन लोगों को भी आगे से किसी ने बताया था, तो वो भी सोचते हैं कि हम भी ज्ञानी बन जाते हैं. उन वो लोग भी चुप नहीं रह पाते, राइट? तो वो तो प्रॉब्लम सबके साथ है. इवन फॉर मी, इन द फ्यूचर इफ समथिंग विल हैपन, मैं भी अपना ज्ञान देना चाहूंगी, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग गलत है. हर किसी को आदत होती है कि भाई किसी की, It's human किसी nature. मतलब, इट्स ह्यूमन नेचर डेफिनेटली. बट उस केस में अगर कोई आपको कुछ समझाना चाह रहा है, उसके बाद भी आप वो चीज नहीं समझ के आप अपनी ही बात को सही प्रूव कर रहे हो, तो फिर बहुत क्लैशेस हो जाते हैं. तो आई Hmm. वुड से कि ये सारी सिचुएशंस में ना, मतलब मेंटालिटी एंड हाउ ब्रॉड इज योर थिंकिंग पैरामीटर, आपका जो भी एक थिंकिंग डोमेन कितना बड़ा है, और आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप कैसी सोसाइटीज में रहे हो, आपने क्या क्या देखा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है. क्योंकि वो लोग बहुत एडजस्टिंग नेचर के हो जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि चीजें ये भी हो सकती है. बट जो लोग वही दकियानूसी सोच जो भी कहते हैं उसको, उसमें पले बड़े हैं, उन्होंने वही देखा है, उन्होंने वही सुना है, किया है, एंड सम पीपल वो वेरी स्टबर्न, उनके साथ बहुत मुश्किलें आती हैं. Hmm. तो Right. मेरे हिसाब से मतलब इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता. यू जस्ट कैन डू योर बेस्ट कि यू जस्ट कीप काम डाउन, डिस्कस योर प्रॉब्लम विद योर पार्टनर, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट तो कोई है ही नहीं. अगर आपको लगता है कि भाई आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव योर पेरेंट्स, राइट? आपके पास आपके पेरेंट्स हैं. अगर आपके पेरेंट्स से आप नहीं उतना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो यू हैव योर फ्रेंड्स, यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड्स, यू हैव योर सिबलिंग्स. आप उनसे बात करो, बट टॉक टू पीपल जो आपको अच्छा फील कराएं. I think अगर आप बट किसी से बात नहीं कर पा रहे हो तो टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट. They will talk to a give psychologist. At least do something about it. Just don't you keep something it to about it. yourself and just don't suffer. कि मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ तो मैं खुद ही सफर करती रहूँ, वो बिल्कुल बहुत. भी नहीं करना चाहिए. Very एंड good. इफ यू कैन सीक हेल्प, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. क्योंकि Nidhi हम very लोग सोचते rightly हैं said. कि I think 47% of women go through postpartum depression. And the reason is कि वो बात नहीं करते हैं. जो भी हो रहा है अंदर एग्जैक्ट. अंदर 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 रहता है, और वो समझ नहीं पाते हैं कि दिस इज द टाइम व्हेन योर चाइल्ड इज ग्रोइंग द मोस्ट, इमोशनली. उसको जो भी आप दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ, मिल्क पिला रही हूँ, या उसको कडल कर रही हूँ, लव कर रही हूँ, बट ही इज कैचिंग योर एनर्जी. इन साइकोलॉजी साइंस इट हैज बीन प्रूवन फ्रॉम day zero, when you have that thought that I am a mother, when the gynecologist writes that you are a mom, उस दिन से बच्चा आपको सुन पा रहा है. वो ग्रैब कर रहा है आपकी एनर्जी, सुख दुख जो भी आप बांट रहे हैं, वो सब फ्रेम हो रहा है. एंड व्हेन ही विल बी born, he will be born with that energy.
तो बात करो, बात करना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड निधि, एंड दैट्स अ वेरी राइट मैसेज कि हेल्प जरूर मांगो। किसी से नहीं मिल रही तो सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। आजकल सो मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट टैबू एनी मोर। अभी भी ठीक है, लोग झिझकते हैं एंड कंसिडर एज अ मेंटल सेटबैक हो गया आपको कोई, अगर आप साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हो। बट इट्स वे बियॉन्ड। आजकल सेलिब्रिटीज भी बोल रहे हैं थेरेपीज लो, बात करो। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू शुड टॉक टू समबडी अबाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। So tell me, Nidhi, you mentioned about Japa period. Mm-hmm. So what is this Hmm. Japa period, and how, what mother actually goes through when this Japa period happens, and what is the role of father, and how your mental health gets disturbed during this Japa period? What are your expectation as a mother? What is this Japa period? पहले तो ये बताओ. So, हमारे Indian culture में, so of course in a Hindu culture, I don't know about the other cultures. So, there's this Japa period, which is a period of 40 days. Hmm. Now, not in just Hindu culture, I've even seen foreigners and all the other people, they mention it that the first 40 days are very crucial. Why they say it? क्योंकि you have given birth to a entire human being. The One being size might be small, but that is the entire human being जो कि alive. आगे आने वाले साल में proper अपना shape and size में आ जाएगा. But that is there in your body for the whole 9 months, and your body उसी ने आपकी हर एक बॉडी के एलिमेंट ने, बोलते हैं ना कि खून से सींचा है, राइट? तो आपके एक एक शरीर के बूंद, खून की बूंद ने उस बच्चे को बनाया है, पैदा क्रिएट किया है. एंड देन व्हेन यू गिव बर्थ, तो बस हो गया, मतलब ऐसे 9 महीने रखा और निकाल दिया, अपनी बॉडी से बाहर कर दिया, एंड देन यू बैक टू नॉर्मल. नहीं, ऐसा नहीं होता है यार. योर बॉडी हैज गॉन थ्रू सो मच, एंड व्हेन योर बॉडी इज गोइंग बैक इन इट इज ओरिजिनल फॉर्म, इट विल टेक टाइम. Take ये two ऐसा नहीं two है कि years. बस, 2 years. yeah, it takes whole 2 years to heal that entire process and to get back into the original form. And for some people it might even take longer. Like ऐसा नहीं है कि कोई set rule है. Some people go through a lot of problems, obesity, और बेबी के बाद इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं. तो ये बोल देना कि भाई बच्चा हो गया अब आप बस उसकी देखभाल करो, ये बहुत ही घटिया मेंटालिटी है, आई वुड से. I mean, I'm very clear about it, but this is so wrong. Like when a woman gives birth, she everybody says, right, कि उसका एक नया जन्म होता है, क्योंकि it is so crucial. Everything is so crucial. Like if one thing goes wrong, that can be very fatal. Like that can be very dangerous for her own health. बच्चे का तो छोड़ो, माँ की भी हेल्थ के ऊपर बहुत कभी कभी इम्पैक्ट पड़ता है. एंड देन व्हाई दे से दीज 40 days जापा पीरियड इज कि एक माँ को जिसने इतना सफर करके, इतना कुछ करके एक बच्चे को जन्म दिया है, वो 40 दिन आराम से रह पाए, तो उसकी प्रॉपर केयर करना, ताकि उसकी बॉडी जो रिकवर हो, तो बाद में शी कैन टेक केयर ऑफ द बेबी. सो दैट्स व्हाई दोस 40 days एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ द मदर, कि उसका राइट न्यूट्रिशन, क्योंकि आपकी बॉडी वीक है इस टाइम पे, आपकी बॉडी में ऑलरेडी सब कुछ बैक टू प्लेस जा रहा है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहे हैं, आपके you're ऑर्गन्स already वापस जा रहे हैं. या yeah, you're already bleeding so much, you have that discomfort, pain भी होता है, in fact you have to take painkillers and all that. आपका प्लेसेंटा, आपका सब कुछ, आपका यूट्रस कॉम्पैक्ट हो रहा होता है, तो that pain is very bad. I faced it and I was not on painkillers, and my doctor was like, why are you not on painkillers? This pain is very, I mean, you cannot even explain it. I was like, what is happening to me? And I then started again taking painkillers. मुझे लगा कि कुछ नहीं है, but I honestly faced it. And that पीरियड बेबी ब्लूज करके जो आप बोलते हो, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है, बट सडनली यू स्टार्ट क्राइंग. और वो क्यों होता है? क्योंकि आप पूरा पूरा दिन सो नहीं पा रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एंड आपको ब्रेस्ट फीड करना है ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड आपको रेस्ट नहीं मिल रहा. आपको बोला जाता है, इफ यू हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, तो मुझे बोला था कि पैर क्रॉस करके नहीं बैठ सकते हो आप, ठीक है. सिजेरियन में आई थिंक मुझे पैर फ्लैट करने होते हैं, या फिर वो कुछ, मतलब there's some regulations or something you cannot do.
So in that case, मेरे को हमेशा अपने पैर फ्लैट करके आई यूज टू फीड हर, एंड देन बिकॉज आई एम वेरी टॉल, देन आई वाज लाइक कि बैक पेन भी मुझे थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया था, एंड मेरे को मतलब ये था कि बहुत ज्यादा इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग व्हेन यू नॉट स्लीपिंग, व्हेन सडनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ baby, and then you're breastfeeding on top of that, and you had this hormonal imbalance. So I started crying out of no reason, and मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, but that was baby blues. एंड उसका एक्सटेंसिव, उसका एक्सट्रीम स्टेज डिप्रेशन, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ यू डोंट हैव दैट सपोर्ट, इफ पीपल आर नॉट talking to you or not taking Yes. care of you, Yes. then it converts into postpartum depression. तो आई वुड से दैट दिस जापा पीरियड जो भी बनाया गया है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पहले की सारी चीजें गलत थी, पहले की बहुत सारी चीजें, 90% चीजें सही भी थी। एक माँ को रेस्ट मिले, वो अच्छे से अपना रेस्ट कर पाए, बच्चे की देखभाल करने के लिए और भी लोग होते हैं, बिकॉज बेबी जस्ट नीड्स योर मिल्क फॉर दोज 40 days, एंड ऑफ कोर्स व्हेन अ मदर इज देयर तो शी विल, द बेबी विल बी विद द मदर, बट यू ऑल्सो थिंक अबाउट द मदर। बस ये सोचना कि बच्चे ने दूध पिया है, बच्चा ठीक है, और माँ को बस आप नेग्लेक्ट कर दो, दैट इज नॉट राइट। सो फॉर दैट कॉज दिस जापा पीरियड इज क्रिएटेड, जिसमें एक माँ अच्छे से रेस्ट करे 40 days, उसका पूरा ध्यान रखा जाए, एंड आफ्टर 40 days व्हेन शी इज लाइक फाइन एंड शी इज रिकवर्ड एंड शी इज फीलिंग मच बेटर, then she can start taking care of herself and her baby. बट मैंने So ये that भी is सुना how है, this बट मैंने ये भी सुना है निधि कि जापा पीरियड में हस्बैंड एंड वाइफ दे डोंट स्लीप टुगेदर, इज इट ट्रू इन योर केस? Uh, I mean, in my case, I would say कि ऐसा कुछ नहीं था. Like, of course, because I mean, that is that thinking and that is there in very very मतलब बहुत अलग societies में भी होती है, कुछ लोग के घर में होता होगा. I won't comment on it. But in my case, my husband, he was very supportive in my entire pregnancy, and even the day my daughter was born, he was there with me in the hospital when everybody was like, you just go home and rest. Like, no, I will be with her. And he was taking care of my daughter while I was resting. So he was like, he was very much like, कि नहीं मैं घर पे मैं I will be with her. Of course, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज में नहीं थी. My sister-in-law was also there to help us. And then he was like, कि we all three can take care of her and the baby. So he was there in the room for the entire time. Even at night he was there. तो मेरे केस में वो चीज मैंने फेस नहीं की because he was very supportive. But I have seen a lot of other friends like who have shared their experience with me that their mother-in-law did not allow their husband to even enter the room. They were like कि बट मेरा बेटा क्यों परेशान हो, राइट, आप तू जाके तो सो जा, ऑफिस बच्चा तो जाना पूरे दिन है, तंग करेगा, सुबह ऑफिस ऑफिस जाना जाना है, है, नींद पूरी या नहीं ऑफिस 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 नहीं भी जाना है, अगर बिजनेस है बिजनेस संभालना है, या फिर कुछ भी अगर नहीं है तो भी देर लाइक कि भाई तू क्यों परेशान होगा, मतलब व्हाट इज दिस लॉजिक। बच्चा तो दोनों का है, राइट, प्लानिंग दोनों ने की है, प्रेगनेंसी दोनों की थी, तो व्हाट इज दिस लॉजिक कि तू क्यों परेशान होगा भाई, हो माँ भी तो परेशान हो रही है ना, उसने माँ भी ने तो तो सब कुछ पूरा तब तो किया है। बॉडी का पार्ट कट करके निकाला है बच्चा, एंड फादर। Exactly. So everything has been done by the mother. So now when it is the turn of the father to actually come and support, now you're saying कि क्या जरूरत है, मतलब तू क्यों परेशान हो भाई, क्यों, why? This is not, मतलब हमारी हमारी सोसाइटी में दिस इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक, कि ये जो सोच है ना इसी को बदलना है भाई। तुम ये बोलो आगे बढ़ के कि भाई तुम भी संभालो बच्चे को, तुम्हारा भी बच्चा है, तुम उसको, चलो तुम आई बच्चा थिंक नहीं दैट्स संभाल द सकते रीजन लेकिन जब निधि कि बच्चा, फादर्स बहुत कम कनेक्ट कर पाते हैं इनिशियली बच्चे के साथ। डेफिनेटली। वो पीरियड में होते ही नहीं है, क्योंकि वो इतने कंफर्ट जोन में डाल देते हैं उनको कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि मेरी भी कोई जरूरत है या मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज इफ बेबी सो टाइनी और ब्रेस्ट फीड ले रहा है और सब कुछ कर रहे हैं, तो फादर्स को लगता है कि शायद अभी मेरा रोल शुरू नहीं हुआ है, आई स्टिल टेक सम हम्म। while my role will begin। आई थिंक वो यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि आप इन्वॉल्व होने ही नहीं दे रहे हो ना बच्चे को, फादर को। तो वो थोड़ा पेन से गुजरेंगे, स्लीपनेस नाइस करेंगे, तो जाके वो फील होगा कि नाउ द बेबी हैज कम, देयर इज सम लाइफ between you and your wife। wow, that's a line, right? आई थिंक इन दिस केस मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अगर हेल्प करना भी चाहता होगा ना, इफ अ फादर इवन वांट्स टू हेल्प एंड बी विद द वाइफ, उस केस में उनको इतना फैमिली प्रेशर भी मिल जाता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि मतलब इस टाइम पे दे डोंट वांट टू फाइट विद द फैमिली एंड जस्ट क्रिएट मोर फस, दे आर लाइक कि व्हाटएवर इज हैपनिंग लेट इट बी। तो कुछ जो लोग सही भी होते हैं, जो करना भी चाहते हैं, वो भी बेचारे नहीं कर पाते क्योंकि फैमिलीज ऐसा करती हैं। तो मेरे हिसाब से ना, मतलब
बहुत जरूरी है यार फादर्स की काउंसलिंग होना, और फादर्स, अ मदर एंड फादर की काउंसलिंग से ज्यादा फैमिली की काउंसलिंग होना, इफ दे स्टेइंग विद द फैमिली, उन्हें एजुकेट करना कि भाई यू शुड रियली थिंक अबाउट द विमेन, जो एक माँ है उसके बारे में भी सोचो। एंड दैट वीडियो, ऑफ कोर्स दैट वीडियो वेंट वायरल, एंड द मैसेज फ्रॉम दैट वीडियो, बहुत लोगों ने उसको गलत तरीके में भी लिया। यू टॉकिंग अबाउट दैट जापा हस्बैंड वाला वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, कि why are you proving the mother-in-law wrong? I was not proving anybody wrong. The message of that video was very clear. It was not about the mother-in-law. It was about a husband and a wife जो कि न्यू न्यू पेरेंट्स बने हैं, और उस टाइम पे एक वाइफ को अपने हस्बैंड की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आप एक इंसान के साथ इतने टाइम से आप सब कुछ शेयर कर रहे हो, और एक आपका दोनों का एक बेबी हुआ है। तो उस टाइम पे एक वाइफ को लगता है कि भाई मेरे को अगर कुछ भी चाहिए होगा या मुझे कोई भी छोटी से छोटी जरूरत होगी, तो मैं अपने हस्बैंड को बहुत क्लियरली आराम से बता सकती हूँ और सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। वेर आई मीन देयर इज अ डिफरेंस कि वो एक चीज नहीं आ पाती, वेदर आई मीन सम पीपल आर सुपर लकी दैट दे हैव लाइक ग्रेट मदर इन लॉज जो कि बिल्कुल माँ जैसी होती है, वो भी होता होगा। आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर ब्लेस्ड, बट नॉट इन एवरी केस। 90% केसेस में यही होता है कि भाई इतना सपोर्टिव और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो उस केस में वुमेन नीड्स हर हस्बैंड, अ वाइफ नीड्स हर हस्बैंड, एंड दैट इज द मैसेज ऑफ दैट वीडियो कि भाई सारे हस्बैंड्स के लिए एक मैसेज था कि इस टाइम पे आप प्लीज अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, इस टाइम पे आप प्लीज अपनी वाइफ के साथ रहो, आस्क हर इफ शी इज फेसिंग एनी इशू, आस्क हर इफ शी इज नॉट हैप्पी, इफ शी वांट्स सम हेल्प, एंड दैट वाज वेरी क्लियर। बट लोगों को गलत वे में लेना है तो लोग ले लेते हैं हर वो तरह मैसेज, वो का। वीडियो। आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, मैंने देखा है वो वीडियो, एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड यू। सो आई थिंक दैट्स वेरी अप्रिशिएटेड। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है पूरी सोसाइटी के लिए कि एज यू राइटली सेड, ऑल मदर्स गो थ्रू अ वेरी टफ टाइम। बेबी डिलीवरी इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज नाउ यू हैव टू कम बैक एंड, क्योंकि आप बिल्कुल केज हो जाते हो, यू आर नॉट independent now. A full baby is dependent on you full time, 24/7। तो आपको उसी का देखना है, वो खाया कि नहीं, वो सोया कि नहीं, वो नापी चेंज हुआ कि नहीं, एंड यू गेट थ्रू लॉट ऑफ ट्रोल्स ड्यूरिंग। तुम पहली बार माँ बनी हो क्या, तुम्हारा ही पहला बच्चा हुआ है क्या, हमने बच्चे नहीं पाले हैं क्या, दैट वेरी कॉमन टॉन्ट्स come to a mother who has just become a mother. So yes, that's very, very important message. That's very beautiful reel. I think that you have done justice to whatever message you wanted to spread with it. So I think that's a very, very beautiful video, and I thank you so much, Nidhi, for being on the show. I think थैंक यू। I believe, I'm not thinking, I'm believing that you have shared so many good insights, and when this video will come out and we'll share it with everybody on our platform, it will reach out to right people, spreading right डेफिनेटली। message. Even if we can change few lives, we will be very राइट। happy about it. So entire SAR Holistic Wellness team, which is a team, I'm the founder of the organization, and we believe calm parents, calm mothers raises calm children. So mother's mental health is very important. If we want our, generations to be kind, compassionate, loving, then please focus on mother's mental well-being, because they are the primary caregiver, and they will frame your child's energy and outlook and character. Yeah. Anything else, Didi, that you want to share? I think that's very beautiful, and that's something really nice you guys are doing. Thinking about mothers and their emotional peace. Hello, parents. If you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.